Hello everyone, welcome back to your science class. So students, in our previous video we were studying chapter 5 that was the fundamental unit of life. हम क्लास 9 का जो चैप्टर 5 है the fundamental unit of life that we were studying the fundamental unit of life and that was cell. We were completing this chapter. हमने chapter 5 जो है the fundamental unit of life cell, this we have studied up to the components of cell. I have told you what is a cell, how the cell was discovered, what are the different types of the cell, what are the components of the cell. So that was all about the previous video, and today in this video we will talk about the organelles and their functions. Organelles क्या होती हैं, organelles के functions क्या हैं, and we will also study the differences between the plants and the animal cells. Plants और animal cell में क्या differences होते हैं वो भी हम आज अपनी इस वीडियो में पढ़ते हैं. So let's start the first topic and that is the organelles. हमारा जो आज का टॉपिक है वो organelles है. What are organelles? I have told you that the cytoplasm has many tiny components of the cell suspended in it. cytoplasm में बहुत सारे tiny components हैं cell के, वो suspend होते हैं, and these type of the tiny components are known as the organelles and they perform various functions in the cell. सेल के अंदर कुछ छोटे components भी होते हैं जो उसके cytoplasm में suspended होते हैं, and these types of organelles are helpful in performing the various functions of the cell. जैसे कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करना, सेल के अंदर लिपिड्स बनाना, फैट्स मॉलिक्यूल का सिंथेसिस करना, ATP का जनरेशन करना, and for the process of photosynthesis also we have chloroplast. So there are many types of organelles which are helping a cell in performing its various functions. So our first organelle here is endoplasmic reticulum. First organelle हमारी आती है endoplasmic reticulum. It can be written as ER in short. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is the network surrounding the nucleus. Nucleus के चारों तरफ एक network होता है, उस network को ही हम endoplasmic reticulum कहते हैं, and this type of network is involved in the two main formation or synthesis inside the cell. And according to that, the endoplasmic reticulum is divided into two parts. Endoplasmic reticulum को हम two parts में divide करते हैं. The first one is smooth endoplasmic reticulum and the second one is rough endoplasmic reticulum. एक होता है smooth endoplasmic reticulum and the one is rough endoplasmic reticulum. Why they are named so? Smooth क्या होता है? Which has a clear surface, and rough means it has some granular or some complex structures and not giving the smooth appearance. Smooth क्यों होता है endoplasmic reticulum? When it doesn't have the ribosome, means the endoplasmic reticulum which doesn't have the ribosomes, जिसमें ribosomes नहीं होते हैं और do not have ribosomes. इस टाइप के endoplasmic reticulum को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स. राइबोसोम्स क्या हैं? दीज आर द स्मॉल ग्रेनुलर स्ट्रक्चर. जैसे कि आपका फर्श है और कोई भी स्मूथ सरफेस है, इवन अ स्टील प्लेट, आप उस पर मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं, राई के दाने, देन व्हाट हैपन्स, तो वो सरफेस जो स्टील आपकी प्लेट थी स्मूथ सरफेस की, अब वो बन जाती है रफ. सो दैट इज द रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस. सेम ऐसे ही ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स में. these are known as the ribosomes. I have told you earlier कि प्रोकैरियोटिक सेल होता था, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स तो थे, अदर membrane bound organelles were absent. So we have the ribosomes here. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड अ काइंड ऑफ रेटिकुलम विच हैज़
विच हैज़ द राइबोसोम, जहाँ पर राइबोसोम होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जहाँ पे वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे दैट विल मेक द सरफेस रफ, तो जहाँ पर नहीं है राइबोसोम्स वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और जहाँ पर हैं राइबोसोम्स वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एंड दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं ये। द वन इज द राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। लिपिड्स और फैट्स के जो मॉलिक्यूल बनेंगे सेल्स में वो कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथनेस होती है ना, जितना भी आप ऑयलिंग होगी सरफेस की दैट विल बिकम मोर स्मूथ, तो ये यहाँ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रेटिकुलम विच हैज द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सो दैट्स व्हाई द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी प्रोटीन सिंथेसिस, वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आपके दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हो जाते हैं। नाउ वी हैव द अनदर वन एंड दैट ऑर्गेनली is known as the mitochondria। दूसरी ऑर्गेनली आपकी आती है माइटोकॉन्ड्रिया। What is mitochondria? Mitochondria is the type of cell organelle which has a special functions of generating ATP, which is adenosine triphosphate molecules, and which are our energy currency। हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो ATP की फॉर्म में, मीन्स जब during the process of respiration we have the conversion of glucose molecules into the energy molecules called ATP, और वही ATP जो हैं आपके energy currency इसलिए हैं whatever the processes you are performing in your life these ATPs are helpful in doing so। so वहाँ पे जो ATP बनाने का काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है सेल में, so that's why they are known as the power house of the cell। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? it is known as the power house of the cell। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस क्या होता है हमारा? जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एंड दैट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन योर वेरियस डिवाइसेस। आपका फैन उससे चल रहा है, आपका कूलर उससे चल रहा है, एंड यू आर हैविंग योर रेफ्रिजरेटर रनिंग विद दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए पावर हाउस से हमें अपनी एनर्जी, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। सिमिलरली हियर the ATP is formed inside the mitochondria, so they are known as the powerhouse of the cell। क्योंकि हमारी जो पावर है, हम जो एक्टिविटीज़ अपनी कर पा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस कर पा रहे हैं, वो इन्हीं ATP की वजह से करते हैं। so that's why it's known as the powerhouse of the cell। then है क्या माइटोकॉन्ड्रिया? इट्स अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। दो टाइप की इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं, एंड इट हैज़ द इनर फोल्ड्स ऑल्सो। इसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं इनर। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट्स प्रेजेंट इनसाइड बोथ द सेल्स, वेदर इट्स प्लांट्स और एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होता है ये। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट जनरेट्स ATP। क्या जनरेट करता है ये? ATP। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? इट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी एनर्जी करेंसी कहलाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? इट्स बिकॉज वी आर एबल टू परफॉर्म आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज with the help of ATP or adenosine triphosphate। that's why it's known as the energy currency of the cell। and mitochondria is known as the powerhouse of the cell because it's generating that ATP or that currency। करेंसी किसको कहते हैं आप? जिससे आप कुछ भी परचेज कर सकें। यहाँ एनर्जी करेंसी है, मीन्स वो एनर्जी जिससे आप अपनी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द थर्ड ऑर्गेनली एंड दैट इज गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी।
नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनली आती है थर्ड वन, दैट इज गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होती है? दीज आर द स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं ये एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से ये कुछ स्ट्रैंड्स की फॉर्म में गोल्जी बॉडी जो है प्रेजेंट होती है इनसाइड द सेल और द साइटोप्लाज्म, सस्पेंडेड रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडीज क्या है? दीज आर द स्ट्रैंड्स विच आर arranged parallel to each other. What is the function of the Golgi bodies? Golgi bodies are involved in the storage and packaging of the materials made inside the cell. Cell में जो materials बन रहे हैं, whether it's protein, whether it's lipids or fats, they all are stored and it helps in the packaging of the दोज मटीरियल्स। सारे जो पैकेजिंग होती है और स्टोरिंग होती है, पैकेट्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप चीज़ों को स्टोर कर सकें किसी को, एंड इन केस ऑफ नीड यू कैन टेक दैट आउट। सिमिलरली इट्स गोइंग ऑन हेयर। ये जितना भी मटेरियल बनता है सेल में, दैट इज स्टोर्ड इनसाइड द गोल्जी apparatus, एंड व्हेनेवर वी नीड दीज मटेरियल्स it is provided by the Golgi bodies. It's also involved in the formation of the lysosomes. Lysosome जो कि suicidal bags होते हैं सेल के, वो भी Golgi apparatus या Golgi bodies की ही formation है। So it's also known as the storage sac of the cell. इसको storage sac भी कहा जाता है, इसीलिए क्यों? It's helpful in the storage and packaging of the materials made inside the cell. Now we have the fourth one, and the fourth type of the organelle is lysosomes. फोर्थ ऑर्गेनली हमारी आती है lysosomes. What are lysosomes? Lysosomes क्या होते हैं? Lysosomes are known as the suicidal bags of the cell. इसको suicidal bags कहते हैं। suicidal bags क्यों कहा इसको? suicide means जो अपनी ही मर्जी से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, ख़त्म कर दे, दैट इज suicide. यहाँ पे क्या है? ये क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द विल, अपने ही मतलब जो भी आपका फॉरेन मटेरियल है, लाइक द बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ फॉरेन मटेरियल, दे engulf that material, they digest that, and after digesting the foreign material they burst themselves to clean the cell. ये सेल को क्लीन करने के लिए अपने आप अपनी मर्जी से खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं and they help to clean the cell. ये जितना भी डैमेज्ड वेस्ट या डैमेज सेल्स होते हैं सबको अपने अंदर ले लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी में, लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड आफ्टर डाइजेस्टिंग दैट फॉरेन मटेरियल दे बस्ट देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए उसको सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। ओके, नाउ वी हैव प्लास्टिड्स। अब हमारे पास आते हैं द फिफ्थ काइंड ऑफ ऑर्गेनली एंड दैट इज द प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द प्लांट सेल। प्लास्टिड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। एंड दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। प्लास्टिड्स क्या हैं? दीज आर द ऑर्गेनलीज विच आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड दे आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट है बट प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई they have one distinguishing or the differentiating feature between plant and animal cell. Plastids three types के होते हैं। One is chloroplast. I think you have listened this name earlier. आपने पहले सुना होगा chloroplast, chlorophyll. And the second one is the chromoplast. The third one is leucoplast. So these are the three types of the plastids present in the plant cell. They are responsible for the coloring. Means chloroplast क्या है? Chloroplast is the type of cell organelle which helps to impart the color to the leaves. Leaves का जो green color है वो किसकी वजह से है? Chlorophyll की वजह से। और chlorophyll कहाँ present है? Inside the organelles known as the chloroplast. So chloroplast क्या करते हैं? They impart ग्रीन कलर टू द लीव्स। ग्रीन कलर देते हैं लीव्स को। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू क्लोरोफिल।
देन वी हैव द क्रोमोप्लास्ट। अदर देन ग्रीन कलर, प्लांट्स के अंदर जो भी कलर है फ्रूट्स का, उनके फ्लावर का, आपने देखे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं फ्लावर्स की। वी हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड विद द ब्यूटीफुल कलर्स। तो वो जो सारे कलर्स हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्रोमोप्लास्ट। पर्पल कलर का फ्लावर आपने देखा होगा, यू हैव द पिंक कलर्ड फ्लावर, रेड कलर के भी फ्लावर्स होते हैं, येलो फ्लावर्स यू आर हैविंग, वाइट फ्लावर यू आर हैविंग। सो अदर देन द ग्रीन कलर, ग्रीन के अलावा फ्रूट्स और फ्लावर को जो कलर प्रोवाइड करता है वो कौन सी ऑर्गेनेली है? दैट इज क्रोमोप्लास्ट। इट प्रोवाइड्स और इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। फ्लावर को और फ्रूट्स को जो कलर प्रोवाइड करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। देन वी हैव द थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। दिस इज द कलरलेस ऑर्गेनेली एंड इट हेल्प्स टू स्टोर फूड। ये क्या करता है? फूड की स्टोरेज जो होती है प्लांट्स में उसमें हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई इट्स ल्यूको मीन्स कलरलेस होता है वो। जैसे ल्यूकोसाइड्स आपके WBCs होते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी पिगमेंट देयर, लाइक द कलर्ड पिगमेंट दे आर नॉट हैविंग। सो कलर्ड पिगमेंट नहीं है यहाँ पे, इसीलिए उसको ल्यूकोप्लास्ट बोला है। ये ऑर्गेनेली क्या करती है? कलर इम्पार्ट ना करके इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स में जहाँ फूड स्टोर होता है वहाँ पर हेल्पफुल होती है। सो वी स्टडीड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। वन वॉज chloroplast which impart green color to the leaves. Then we have the chromoplast which impart the color to the flowers in the fruits. Then we have the leucoplast which imparts or which stores the food for the plant. So that was about the plastids. Now we have another kind of organelle and that is the vacuole. Next organelle हमारी आती है vacuole. Vacuole क्या है? It's a sac-like structure which is helpful in storing the waste inside the cell. सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट होता है सेल का, जहाँ स्टोर होगा वो कहलाया जाएगा वैक्यूल। इट्स ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टोरिंग सम फूड। फूड को भी स्टोर करने के काम आता है वैक्यूल। एंड इन द प्लांट सेल देयर इज मोर स्टोरेज ऑफ द फूड एंड मोर वेस्ट जनरेटेड, सो दैट्स व्हाई दे हैव अ लार्ज वैक्यूल। whereas in animal cell there is less food storage and the waste is continuously removed by the different organs, so they have a smaller vacuole. आप प्लांट सेल में देखेंगे एक बड़ा सा वैक्यूल होगा प्लांट्स में, जबकि एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो बहुत छोटा होगा। क्या काम होता है वैक्यूल का? दे हेल्प टू कैरी वेस्ट। ये वेस्ट कैरी करते हैं एंड ऑल्सो स्टोर फूड, और फूड को स्टोर करते हैं। So vacuoles क्या हैं? Vacuoles are the organelles which are present inside the cells and helps in the storage of food as well as the storage of the waste material made inside the cell. Plant cell have a larger vacuole whereas the animal cell has a smaller vacuole. This you can write in the differences between the plants and the animal cell. Now we have another organelle and the name of the organelle is ribosomes. अब आता है आपका ribosomes. What is ribosome? Ribosomes are the granular structures which are non-membranous, means वो granular structure होंगे। जैसा हमने ये membrane bound organelles पढ़ी है इनसे just different होंगे। छोटे छोटे granules दानेदार जो है ये structures होते हैं and they perform the special function of protein synthesis. जो सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। एंड दीज आर व्हाट? दीज आर ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ये नहीं होते हैं। सो दैट इज अबाउट द राइबोसोम एंड दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस।
सो दीज वर अबाउट द सेल ऑर्गेनलीज, क्या क्या सेल ऑर्गेनलीज होती हैं प्लांट्स के अंदर एंड व्हाट फंक्शन दे आर परफॉर्मिंग. दिस वॉज अबाउट द organelles. Now we have the differences between the plant and the animal cell. Difference between plant and animal cell. Plants और animal cell में क्या क्या differences होते हैं वो हम देखेंगे. Plant cell, animal cell. So what is the main difference in the plant and animal cell? Plant cells have cell wall. Plant cell में cell wall होती है, whereas the animal cell is devoid of cell wall. इसमें cell wall नहीं होती है, does not have cell wall. सेकेंड डिफरेंस की बात अगर हम करें तो प्लांट सेल्स हैज़ प्लास्टिड्स. अभी आपने पढ़ा प्लास्टिड्स कलर्ड ऑर्गेनलीज होती हैं प्लांट सेल में, तो सिर्फ ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है एंड दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, डज नॉट हैव प्लास्टिड्स. द थर्ड डिफरेंस इज प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स. प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, whereas the animal cell have a smaller vacuole. Clear? So cell wall होती है, यहाँ cell wall नहीं होती है. They have plastids and they are not having the plastids. They have large vacuole and they have the smaller vacuole. One more thing. You can talk about the here in the plant cell and the animal cell the difference of the nucleus can also be written. आप न्यूक्लियस का भी डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक जगह तो न्यूक्लियस आपका होता है सेंट्रली लोकलाइज्ड और एक जगह होता है पेरीफेरी पे. द प्लांट सेल हैव अ सेंट्रली लोकलाइज्ड न्यूक्लियस whereas the animal cell has the nucleus on its periphery or somewhat away from the center. So that was about the differences between the plant and the animal cell. Now we will see these differences with the help of their diagrams. So let's see that. Now see the differences between the plant and animal cell. Cell is the structural and functional unit of life, and plants and animal cells have this type of organization. They look different from each other in many ways, and they are different because यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल का जो डायग्राम होता है और प्लांट सेल में यू हैव स्टडीड दैट प्लांट सेल्स हैव द सेल वॉल. प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल, whereas the animal cell does not have any cell wall. एनिमल सेल की कोई सेल वॉल नहीं होती है, उनकी आउटर कवरिंग उनकी सेल मेम्ब्रेन ही होती है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, दैट आर प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल whereas animal cells do not have the cell wall. The second difference here is you can see some green structures here inside a plant cell which are not present in the animal cell. प्लांट सेल में आपको कुछ ग्रीन ऑर्गेनलीज दिख जाएंगी जो कि आपको एनिमल सेल में कहीं पर भी ये ग्रीन ऑर्गेनलीज प्रेजेंट नहीं होंगी. And they have the vacuole also. Plant cell has one large vacuole whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles. Animal cell में बहुत छोटे छोटे vacuoles होते हैं जबकि plant cell में बड़े vacuoles होते हैं. Now about these green structures or the green organelles. These green organelles are present in plant cells and these are known as the chloroplast or the plastids. Colored organelles होती हैं plant cell में. These are known as plastids and plastids containing chlorophyll are known as the chloroplast. तो chloroplast क्या करता है, leaves को green color provide करता है and that's present in the plant cell and they are absent in animal cell. Plastids present होती हैं plant cell में और absent होती हैं
animal cell में. So that is the second difference between a plant and an animal cell. So we can also say that we have a recap here. A plant cell is different from animal cell. It has one large vacuole, whereas an animal cell has multiple smaller vacuoles. उसके smaller vacuoles होते हैं. There are certain structures present which are responsible for the colors in plant cells, but an absent in animal cell. These are plastids. So that is about. So that's all for today, and in our next video we will solve the NCERT text question of chapter 5, the fundamental unit of life. We will talk about the in-text question as well as the exercises of chapter 5 cell, the fundamental unit of life. Till then, revise these notes and start preparing for your examination. All the best for your exams.